Hello everyone. Welcome you all to Economics Fundamentals. In our previous class for class 11th, under the measures of central tendency, we have been finished with the arithmetic mean. Now we are going ahead and today we are going to discuss the median. Median is the middle value of the series which when items are arranged either in ascending order और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इट मीन्स जो मीडियन है वो एक सेंट्रल वैल्यू को बताता है, एक मिडिल वैल्यू को बताता है जब आइटम्स को हमने या तो घटते हुए क्रम में लिखा हो या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा हो. अगर आप देखें मीडियन इंडिविजुअल सीरीज़ में तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज. स्टेप्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कंप्यूट नंबर ऑफ आइटम्स, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला. द फार्मूला इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 item where m is median and n is number of items. Now we are moving ahead. Next, this is the first problem given for calculating the value of median. Find out the median of the following data. Learners, this is the example of individual series. Serial number 1 to 9 and the values are 11, 12, 8, 5, 9, 14, 20, 15 and 13. So here we move. The solution is given over here. These two columns have been given in the question and now we are calculating the size of m yani size of median. So n+1/2 item will be the size of median. What is the value of n? N is given here 9. So 9 plus 1/2, so it becomes 10, 10/2. When we deduct this, it becomes 5. So fifth item will be the value of median, which is nothing but the 12. So 12 will be median. Next, this is the second example. Calculate median from the following data: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. These are the serial numbers and these are the marks: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28. Again, it's very simple. We can calculate median by applying that previous formula. Here it goes like this. The m or size of median will be n+1/2 item. So m will be size of 12 plus 1/2 because n is 12 over here. So here we calculate like this: 13/2, it becomes 6.5. So please understand, when it becomes 6.5, 7.5, it means we have to add these two values together. 6 and 7 means 16 and 8, and then it will be divisible by 2. So 16 plus 18 divided by 2, it becomes 34. 34 divided by 2, 17. Then we will see the median is 17. So the value of median will be 17. Here is given. The next one is calculation of median in discrete series. So the steps for calculating median is nothing change over here. In discrete series, it is a frequency series. Arrange the data in ascending or descending order. Convert the frequencies into cumulative frequency. Yes, here now we have to convert the frequency into the cumulative frequency, then apply the formula. The formula is same which was applied in the case of individual series. जो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में अप्लाई किया था वही फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज़ में भी अप्लाई करेंगे. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि जो डेटा है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे हमें क्यूमुलेटिव में चेंज करना होगा. ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं.
सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। ये दीज आर द मार्क्स 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47. This is the value of x. Then number of student, this is the value of f. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14 and 16. The total number of frequency will be 72. It means it will become the value of n, or total number of observations. Now we are calculating cumulative frequency. So first will be 2, then 2 plus 3 it becomes 5, and 5 plus 7 it becomes 12, and 12 plus 8 it becomes 20, 20 plus 10 it becomes 30, 30 plus 12 becomes 42, then 42 plus 14 becomes 56, and 56 plus 16 it becomes 72. So size of 72 plus 1 by 2, it becomes 73 by 2, means 36.5. Now we have to look where the 36.5 is locating. So 36.5 we will see it comes under this 42. So under this 42 this will become this here. So in 42 the 36.5 will be lying over here. That is why we are addressing this value, and then we will see its corresponding value of x, which will become the 45. That will be the value of median. So median will be 45. Moving ahead, this is the second example. Find out the median from the following data. Again the example from discrete series. Here we see like this, the frequency are given, then we convert the frequency into cumulative frequency. यहाँ पर भी हमने cumulative में बदल दिया. 5 रहेगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, then 20 और 6 26, and 26 और 9 35. So n will be 35. Then size of 35 plus 1 by 2 items of 36 by 2, it becomes 18. 18 is exactly available over here in cumulative frequency. Then we see in front of the 18 there is the value of 7. So 7 will be the value of median, which is given here. Now calculation of median in continuous series. Most of the time the question will be asked from the continuous series only. So here we see what happens in case of continuous series. Continuous series means a series which consists the class interval. So here are the steps. Arrange the series either in ascending or in descending order. First of all we have to arrange the series in ascending or descending order. If inclusive series is given, then convert it into exclusive series. अगर inclusive में दिया गया है तो हमें उसे exclusive में बदलना है. inclusive और exclusive आप लोग जानते हैं. exclusive series वो होती है जिसमें upper limit include नहीं होती है, only lower limit will be included. और inclusive series में दोनों limit उसी class interval में include होती हैं. Convert the simple frequency into the cumulative frequency. After that find the size of n by 2 item. फिर हमें बाद में n by 2 item का पता लगाना होता है. Apply the formula. इसके दो formulas हैं. एक तो है median is equal to L1 plus I oblique F m minus C. यहाँ पर आप समझेंगे L1 जो है वो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की. I जो है वो जो मीडियन क्लास है उसका क्लास इंटरवल है. ठीक है, यानी गैप बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. f जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है. m जो है वो मीडियन क्लास की जो वैल्यू n बाई 2 है वो है. और माइनस c जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग टू द मीडियन क्लास है. सेकंड फार्मूला जो कि बहुत पॉपुलर है, जो ज़्यादातर बुक्स में आपको नज़र आएगा, वो है ये वाला फार्मूला. ये मिलेगा आपको मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF ऑब्लिक F इंटू आई. n बाई 2 इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ m, है ना. फिर माइनस CF वही है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास फ्रॉम द मीडियन क्लास. और f विल रिमेन सेम, f सेम रहेगा. और उसके बाद आपका जो है इंटू आई जो है वो आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है. ठीक है,
तो इसी फॉर्मूले से इसको डिराइव किया गया है। चलते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। एक एग्जांपल दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का एग्जांपल है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। देखेंगे इसका सॉल्यूशन है, ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, है ना। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये हमने ले लिया। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए, फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 10, 6 और 4। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली 5, 5 और 10, 15, 15 प्लस 15 इट बिकम्स 30, 30 plus 10 becomes 40, 40 plus 6 46 and 46 plus 4 50। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF ऑब्लिक F इंटू I। ये हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लिया है, ये वाला देखिए। यहाँ जो है इस फॉर्मूले को भी हम ले रहे हैं जो ज़्यादातर बुक्स में आपके दिया गया है। आगे चलते हैं इसको। ये फार्मूला हो गया, तो n बाई 2 यानी n कितना 50, 50 बाई 2 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखेंगे आप 25 जब हमारे पास आ जाता है तो 25 को आप CF में सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा 30 वाली लाइन में, इसी में इंक्लूड है 25 भी क्योंकि उससे पहले 15 है। तो 25 30 के सामने देखेंगे L1 कितना है 20 है, I कितना हो जाएगा 20 और 30 का डिफरेंस 10 हो जाएगा, F कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और C कितना हो जाएगा, यानी जो प्रीसीडिंग क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 15। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देंगे हम। ये आ गया हमारा फॉर्मूला L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF ऑब्लिक F इंटू I। सो 20 प्लस 50 बाई 2 माइनस 15 ऑब्लिक 15 इंटू 10। अब यहाँ पर 25 आ गया, सो 25 माइनस 15 ऑब्लिक 15 इंटू 10। यहाँ पर बचा आपका 20 और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 10 ज़ा 100, 100 ऑब्लिक 15। तो इसको आप देखेंगे 15 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.666। इसको 6.67 हमने लिख दिया और 20 में इसको जोड़ दिया तो 26.67। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ median in continuous series। Moving on, ये सेकंड फार्मूला है जो इसका अल्टरनेट फार्मूला है। इसी क्वेश्चन को लिया गया है इस फार्मूले में L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C। L1 हमने देख लिया था 20 है, फिर I क्या है क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 10 है, उसको ले लिया हमने 10। फिर 15 क्या है क्लास फ्रीक्वेंसी है, फिर 25 क्या है m है यानी वैल्यू ऑफ मीडियन जो n बाई 2 आया है वो हो गया आपका 25। फिर माइनस c क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो कि 15 है। अब आप देखेंगे 20 प्लस यहाँ 25 में 15 जब जाएगा इधर आप देखेंगे ये है हमारा फॉर्मूला। 25 में 15 गया तो 10 बचा, तो 10 इंटू 10 ऑब्लिक 15 हो गया, ये 100 हो गया। अगेन वही चीज़ आ गई, डिवाइड करेंगे 6.667 हो गया, तो ये फिर 20 में जोड़ दिया तो 26.67 विल बी दी आंसर ऑफ मीडियन। ओके, एक और इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अगर इंक्लूसिव सीरीज़ दी गई हो। अब देखिए आपको पता है ये सीरीज़ इंक्लूसिव है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25। 5 का डिफरेंस है लेकिन सीरीज़ इंक्लूसिव है, बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। इसको देखते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता था कि क्लास अगर इंक्लूसिव में दी गई है तो उसे पहले हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया जाता है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड होता है। तो जब आप 1 में से 0.5 घटाएंगे तो इट बिकम्स 0.5 ओनली, एंड 5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे 6 में से 0.5 घटाएंगे तो 5.5 बचेगा और 10 में जोड़ देंगे तो 10.5। सिमिलरली दिस प्रोसेस विल गोज़ ऑन।
10.5, 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5. Now the class intervals are converted into exclusive forms. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में कुछ नहीं करना, वो दिया हुआ है 6, 9, 15, 11, 9, ये टोटल 50 हो गया. अब हमने CF निकाल लेना है. 6 और 6 और 9 15, 15 और 15 30 और आपका 30 और 11 41 और 41 और 9 50. अब n/2 निकालेंगे तो 25 आएगा. 25 को आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 30 वाली लाइन में. तो ये तो हो गया आपका F 15. फिर L1 हो गया 10.5. ओके, और I क्या हो गया 10.5 से 15.5 यानी 5 का डिफरेंस हो गया. और 15 ऊपर वाला क्या हो गया, ये CF हो गया या C हो गया, यानी वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. अब हमने ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है n/2 निकालने के लिए. उसके बाद आपका ये हो जाएगा L1, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है L1 प्लस, ठीक है, I/F m-c. ओके, सो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 5/15. कैसे हो जाएगा, I हमारा 5 है और 15 जो है वो हमारा F है. फिर m-c करेंगे तो m क्या है हमारा 25 है और c क्या है 15 है, तो ये 10 आ जाएगा. फिर आपने 10 की 5 में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50/15. जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 3.33 और इधर आपके लेफ़्ट में 10.5 है. सो 10.5 प्लस 3.33 इट बिकम्स 13.83. ओके, इसको आप देख लेंगे. These are some effects which are given, this one. So this is the answer 13.33. Okay, so this is how we can calculate the value of median under the individual series, under the discrete series and the continuous series as well. So आज हमने ये समझने की कोशिश की कि मीडियन को हम किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं. अगली क्लास में अब हम मोड की वैल्यू का कैलकुलेशन समझेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.